گلائی سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو جو ہے وہ گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. واو بولیں، واو واو. جی دیکھیں، با دونوں ہونٹوں کے تاری حصے سے، فا اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ تاری حصہ، ٹھیک ہے، اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، باہر والے حصے سے، بیرونی حصے سے، اور واو دونوں ہونٹوں کے کی گلائی سے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. یہ آج ہم نے تجوید کا سبق کمپلیٹ کیا. اب ہم اگلے پورشن کی طرف چلتے ہیں. ریگولر فار اوورسیٹلسا اور تھولکننگ آف دن ہیڈیے قرآن. قرآن پاک کی تفسیر کے والے سے جو ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے ایک ٹاپک جو شروع کیا ہوا ہے تعارف قرآن مجید کا. تو آج پچھلی کلاس میں ہم نے قرآن مجید کا کچھ تعارف پڑھا تھا، اور قرآن مجید اور پچھلی آسمانی کتابوں کے نزول میں کیا فرق ہے یہ ہم نے سیکھا تھا. تو آج کی کلاس میں مزید ہم قرآن مجید کا جو ہے وہ تعارف سیکھتے ہیں. جی انٹروڈکشن ٹل دین ہیلیے قرآن. جی سب سے پہلی بات، ایٹ نام فار دین ہیلیے قرآن اور آلسو فرقان. قرآن مجید کا ایک اور نام بھی ہے فرقان. کون سا ہے؟ فرقان. دتا اورستا مرفرا اورا فرقن. فرقان کا لفظ کس سے بنا ہے؟ فرقن سے. سارے بولیں کس سے بنا ہے؟ فرقن. سم بتھی دے سم یور فور شیل. فرق کرنا کسی چیز میں، فرق کرنا، یہ فرق. اب قرآن مجید کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن مجید کا ایک نام تو قرآن ہے اور ایک اور نام کیا ہے؟ فرقان. اور فرقان کا لفظ کس سے بنا ہے؟ فرقن سے بنا ہے. اور فرقن کا معنی کیا ہے؟ فرق کرنا. ٹھیک ہے. اب قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ یہ کس چیز میں فرق کرتا ہے؟ دین ہیلیے قرآن بلی کھلت فرقان فور دی دین وی سر فور شیلن میلم سن ہیڈ اور لرن ریتس اور گلت تھرو این اور ون تھرو. قرآن مجید جو ہے یہ کس میں فرق کرتا ہے؟ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، اور مسلمان اور کافر میں یہ فرق کرتا ہے. اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ فرقان. اب ہم مزید آگے ایک بڑی اہم چیز اور دلچسپ انفارمیشن پڑھنے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ فور شیلن میلن دن ہیلیے قرآن اور دی پروفیتس کا تھادیشون ہے بتھی حدیث. یعنی قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے یہ ہم نے پڑھنا. آپ جانتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو آپ نے فرمائے ہیں وہ کہلاتے ہیں، اور قرآن بھی جو ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ قرآن بھی حضور کی زبان سے ادا ہوتا ہے، حدیث بھی حضور کی زبان سے ادا ہوتا ہے. یعنی حدیث بھی حضور نے بول کر بتائی اور قرآن بھی حضور نے بول کر بتایا. اور قرآن بھی عربی میں، حدیث بھی. تو فرق کیا ہوا؟ دونوں عربی میں ہیں، دونوں عربی میں، اور دونوں کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ زبانی مصطفیٰ سے. قرآن بھی کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ زبانی مصطفیٰ سے، آقا علیہ السلام کی زبان سے. اور حدیث بھی کہاں سے ادا ہو رہی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. تو پھر فرق کیا ہوا؟ آئیے اب ہم فرق پڑھتے ہیں. بودہ قرآن اور حدیث ار اوپن بارنگ فرا اللہ. قرآن، پہلی بات تو ہم یہ جان لیں کہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے. اوپن بارنگ بتھی وحی. ٹھیک ہے. بودہ قرآن اور حدیث ار اوپن بارنگ فرا اللہ. دونوں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اور تھرو فور بیگا ار اوبلیگیٹوریز. اور دونوں کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے. دونوں کو ماننا ضروری ہے. اب ہم چلتے ہیں فرق کی طرف سے. فرق کی طرف. فورشیلن کیا؟ ان میں فرق کیا ہے؟ فورشیلن ار ات بودا سکریفتن اور تھیما. تھیما ایدن ہیلیے قرآن ار فرا اللہ. کہ قرآن بھی وہی ہے، لیکن قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کا تھیما، اس کا مضمون بھی اللہ کی طرف سے. الفاظ بھی اللہ کی طرف سے بولے اور مضمون بھی اللہ کی طرف سے. اور جب کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فات تھا وسنا یوتن نون اندرنگ تھل دے تھرونا، کہ وہ پھر جو آیات نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تبدیلی کے آگے اس کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیتے، صحابہ کے سامنے.
सहाबा कराम के सामने बयान कर, उसमें कोई तब्दीली, नो चेंज, ठीक है, किसी किस्म की कोई नॉन अंदरिंग युतन नॉन अंदरिंग जो है वो आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के सामने पेश कर देते जैसे वो नाजिल होता। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आके बयान करते, हुजूर हू बहू मिनो अन उसी तरह आगे जो है वो पेश कर देते। Slik versene ble resitert av engelen Gabriel अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जिस तरह लाके बयान कर देते हुजूर उसी तरह आगे सहाबा कराम के सामने पेश कर देते। ठीक हो गया। हमने क्या पढ़ा, कुरान पाक जो है ये एक बात तो ये सीखी, कुरान और हदीस दोनों अल्लाह की तरफ से वही हैं, दोनों अल्लाह की तरफ से वही है, दोनों अल्लाह की तरफ से हैं और वही हैं, यानी वही का लफ्ज कुरान के लिए भी बोला जाता है और वही का लफ्ज हदीस के लिए भी बोला जाता है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये, और दोनों को मानना जरूरी है हमारे लिए, कुरान को मानना भी जरूरी है और हदीस को मानना भी जरूरी है। फर्क क्या है दोनों में कि कुरान ऐसी वही है कि जिसके अल्फाज और जिसका मजमून दोनों किसकी तरफ से हैं? अल्लाह ताला की तरफ से हैं। जैसे ही जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सुनाया हुजूर ने आगे वैसे ही बयान कर दिया, उसका मजमून भी अल्लाह की तरफ से और अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से। अब आइए हम हदीस की बात करते हैं। ई हदीस थेमा बस्तम ऑफ अल्लाह, हदीस में जो मजमून होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से मुअय्यन किया जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मेंस उरना सम बिस्क्रेवर थीमा एफ्रा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजमून रब की तरफ से, अल्फाज आका अलैहिस्सलाम के अपने होते थे। फर्क समझ आ गया? कुरान में अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से, मजमून भी अल्लाह की तरफ से, जबकि हदीस में मजमून अल्लाह की तरफ से और अल्फाज हुजूर के अपने होते। हुजूर रब ताला के अता करदा मजमून को अपने लफ्जों में बयान कर देते, अपने लफ्जों में। ये है हदीस। तो गोया ये मेन एक फर्क था कुरान और हदीस में। दूसरा फर्क क्या है कुरान और हदीस में? दूसरा den heilige Koran blir resitert i bunnen mens hadis blir ikke resitert i bunnen। कुरान मजीद की नमाज में तिलावत की जाती है और हदीस की नमाज को नमाज में बतौर तिलावत नहीं पढ़ा जाता। जी तवज्जो फरमाए, कुरान मजीद को नमाज में बतौर तिलावत के पढ़ा जाता है जबकि हदीस को नमाज में बतौर तिलावत के नहीं पढ़ा जाता। कहते हैं therefore खालिस den heilige Koran resitreना ओपन बार वही मतलूब, इसलिए कुरान का एक नाम है वही मतलूब, वो वही जिसकी तिलावत की जाती है, वो वही जिसकी तिलावत की जाती है। और हदीस जो है वो खालिस इक्के रेसिट्रेना ओपन बार, कि ये वो वही नहीं है जिसकी नमाज में तिलावत की जाती है, और इसका नाम है वही गैर मतलूब। क्या नाम है? वही कुरान को कहते हैं वही मतलूब। बोले वही मतलूब, वही मतलूब, वही मतलूब। जी सारे बोले वही मतलूब। ये किस कहते हैं? कुरान को। कुरान से। और हदीस को क्या कहते हैं? वही आपने दरमियान में गैर का लफ्ज लगाना है। वही ऐसी वही मतलूब जो तिलावत की जाती है वो कुरान है। नमाज में जिसकी तिलावत की जाती है, जिसको नमाज में पढ़ा जाता है, वो कुरान बल वही है। और जिसको नमाज में नहीं पढ़ा जाता बतौर तिलावत के, वो वही है गैर मतलूब, यानी वो हदीस है। जी दोबारा एक नज़र हम डालते हैं। हमने पढ़ा कुरान पाक का एक नाम फुरकान है। फुरकान का लफ्ज़ फ़र्कुन से बना है और इस लिहाज से माना है फ़र्क करने वाला। तो कुरान पाक हक और बातिल, सच और झूठ, मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाला है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? फुरकान। कुरान पाक में इसका ये नाम इस्तेमाल हुआ है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। 18वें पारा में सूरह फुरकान शुरू हो रही है। कुरान मजीद में एक सूरत भी फुरकान के नाम से है। तो ये सूरत जो है वो शुरू हो रही है तबारकल्लज़ी नज़्ज़ला, कि बरकत वाली है वो ज़ात कि जिसने फुरकान नाजिल किया अला अब्दी अपने बंदे पर। तो ये नाम जो है कुरान पाक में, कुरान पाक का ये नाम जिक्र किया गया फुरकान। उसके बाद हमने ये बात सीखी कि कुरान और हदीस में फ़र्क क्या है। कुरान और हदीस दोनों क्या है? वही इलाही। अब मुझे आपके बोलने की ज़रूरत है आपकी तरफ से। जी कुरान और हदीस दोनों क्या है? वही इलाही। दोनों वही इलाही हैं और दोनों को मानना जरूरी है। और एक बात हमने सीखी, कुरान में
मजमून और अल्फाज दोनों अल्लाह की तरफ से, जबकि हदीस में मजमून तो अल्लाह की तरफ से और अल्फाज हुजूर के अपने होते थे। ठीक हो गया। दूसरा फर्क हमने ये पढ़ा कि ये कुरान मजीद जो है इसकी नमाज में बतौर तिलावत के इसको पढ़ा जाता है, जबकि हदीस को बतौर तिलावत के नमाज में। इसीलिए कुरान का नाम क्या है? वही है, सारे बोले वही है। और हदीस का नाम क्या है? वही है। सबको समझ आ गई? चलिए आगे। विक्थी इन्फॉर्मेशन ऑन ओपन बारिंग ऑफ दन हलिए कुरान। अभी हम तफसीर का सबक ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, हम पहले तफसीर के सबक को डिटेल के साथ पढ़ने से पहले कुछ कुरान मजीद के बारे में भी हमें मालूमात होनी चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को शामिल किया हुआ इब्तिदा में कि पहले हम 1, 2, 3 क्लासों में हम कुरान पाक के तारुफ को समझ लें, उसके बाद फिर हम तफसीर की तरफ चलेंगे। अब ये कुछ ज़रूरी मालूमात थी कि कुरान पाक कैसे नाजिल हुआ, कुरान पहले कहाँ था, वहाँ से कैसे नाजिल हुआ, इस वाले से चंद ज़रूरी मालूमात हैं जी। कुरान वार स्क्रेवत हो देन बिशित्तद थावलन बिथी लोहे महफूज। कुरान मजीद पहले कहाँ लिखा हुआ था? लोहे महफूज में लिखा हुआ था। फ्रा देयर ब्लेड ट्रांसपोर्टेड ईएन गंग, वहां से फिर एक ही मर्तबा इकट्ठा नाजिल कर दिया गया। ई fullständig form till den första himmelen på natten till den 27 रमजान। सबसे पहले कुरान पाक कहाँ लिखा हुआ था? लोहे महफूज में। फिर वहां से पूरा का पूरा पूरा इकट्ठा जो है ई fullständig form मुकम्मल कुरान पाक जो है वो पहले आसमान पर रमजान मुबारक की 27वीं शब को नाजिल कर दिया गया। इसलिए जो कुरान में आया था ना, शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ील कुरान, कि रमजान का महीना वो है कि जिसमें कुरान उतारा गया। और फिर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। इस उतारने से मुराद जो है लोहे महफूज से, ठीक है, लोहे महफूज से कहाँ पर? पहले आसमान पर पूरा इकट्ठा का इकट्ठा नाजिल कर दिया गया। फिर कहते हैं फ्रादन फस्ता इनलन देन अली कुरान लिट और फॉक्स वे भी हो एंड परियोदा हो सिका। ठीक है। फिर पहले आसमान से 23 साल के अरसा में थोड़ा थोड़ा करके लोगों की जरूरत के मुताबिक कुरान पाक नाजिल होता रहा। ठीक हो गया। इसको जरा दोबारा देखें। सबसे पहले कुरान पाक कहाँ लिखा हुआ था? लोहे महफूज में। फिर वहां से 27 रमजान को सबसे पहले पूरा का पूरा कुरान इकट्ठा कहाँ पर नाजिल हुआ? पहले आसमान पर। फिर पहले आसमान से जमीन पर उसका जो नुज़ूल था वो थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में जो है वो थोड़ा थोड़ा करके लोगों की जरूरत के मुताबिक नाजिल हुआ। यहाँ एक दिलचस्प बात आपसे शेयर करता हूँ जी। ये एक कुरान पाक में लफ्ज आता है अनज़लना, और एक लफ्ज आता है नज़्ज़लना। अनज़लना, नज़्ज़लना। अनज़लना का माना भी हमने उतारा, नज़्ज़लना का माना भी हमने उतारा। तो फर्क क्या है दोनों में? अनज़लना जो है इसका मतलब है हमने पूरा इकट्ठा का इकट्ठा उतारा, एक बारगी से पूरा। और नज़्ज़लना का माना है हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा, हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, वहां अंज़लना है फी लैलतिल क़द्र, कि पूरा का पूरा इकट्ठा उतारा। कहां पर? पहले आसमान। फिर वहां से नज़्ज़लना, थोड़ा थोड़ा करके हमने जमीन पर नाज़िल। ठीक हो गया। ये कुरान में दोनों लफ्ज आते हैं, माना सेम है दोनों में। फर्क क्या है? अनज़लना, अब मैं चूंकि अरबी ग्रामर के हवाले से आपसे बात नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है कि अनज़लना जो है ये इंजाल से बना है, और इंजाल बाबे फाल है। नज़्ज़लना ये तंजील से बना है, बाबे तफील है। इन चीज़ों को आपको समझ नहीं आनी, मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको बता दिया कि अनज़लना जो है इसका माना है हमने इकट्ठा पूरा का पूरा सारा नाज़िल कर दिया, और नज़्ज़लना थोड़ा थोड़ा करके हमने लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उतारा और नाज़िल किया। तो कुरान में ये दोनों लफ्ज़ कुरान पाक के नुज़ूल के हवाले से
یہ استعمال کیے گئے انزلنا اور نزلنا، دونوں لفظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے. اس کے بعد